I hope I am audible to you. 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 I hope I am audible to you and you are able to see the screen properly. I hope I am audible to you and you are able to see the screen properly. I hope I am audible to you and you are able to see the screen properly. I hope I am audible to you and you are able to see the screen properly. Please let me know yes or no. I hope I am audible to you and you are able to see the screen properly. Just let me know once so that I can start. Am I audible to you? So we were started with the anti-cancer drugs and yes, so we were started with the anti-cancer drugs and we have completed our alkylating agent. Alkylating agent, they will cause alkalization, they will add a methyl radical or alkyl radical to the various nucleic acid at the DNA. We have seen the anti-cancer, alkylating anti-cancer drugs. We have also seen the anti-metabolite anti-cancer drugs and okay. So then we have seen the radioisotopes also. We have seen their distinctive toxicities also. Right? Now this is the next part and first, now we'll start with this. We'll start with this. This is known as a estimate and get the font of it, and we'll start. Okay, Rutu jab aa gaya sir. I hope I am audible to you clearly. We'll start the session now. From this slide, we'll start. So what are the general toxicities? What are the general adverse effect of your anti-cancer drugs? We'll take that. Then we'll start the anti-cancer antibiotics. Right. So next part यहाँ पे होगा आपका है ना anti-cancer antibiotics. So first, very important. Please listen carefully. So first, general toxicities of anti-cancer drugs. तो भाई general toxicities of anti-cancer drugs मतलब क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे जनरली एंटी कैंसर ड्रग्स के. तो जनरल टॉक्सिसिटीज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स. जनरल टॉक्सिसिटीज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स. सो व्हाट आर द डिफरेंट टॉक्सिसिटीज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स. सो सबसे पहले, सो एज आई टोल्ड यू, एंटी कैंसर ड्रग्स दे विल किल और दे विल इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. जहां पे भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे. Okay. So anti-cancer drugs they will kill rapidly dividing cells. So rapidly dividing cells कहाँ पे होते हैं? So definitely cancer cell is a rapidly dividing. Then along with that you have different cells in your body where there is active growth. जहाँ पे भी active growth होगा वहाँ पे ये anti-cancer drugs उसका सेल को किल कर देंगे. तो active growth कहाँ पे? Active growth तो कैंसर में है. So rapidly growing cell कहाँ पे एक्ट होंगे? Obviously rapidly growing cells they will act on a cancerous cells because rapidly growing cell कहाँ पे? कैंसर में. rapidly growing cell कहाँ पे? rapidly growing cell are in a bone marrow. bone marrow. rapidly growing cell कहाँ पे भाई? skin. epithelial cells of skin. so epithelial cells of skin. rapidly growing cell कहाँ पे भाई? rapidly growing cells are in a again right. rapidly growing cells are in a mucosal lining, mucosa of your GIT, right? So rapidly growing cells are then in a cancer
cancerous cell, rapidly growing cell are in bone marrow, rapidly growing cell are in epithelial cells of your skin, rapidly growing cells are in a bone marrow, rapidly growing cells are in a testis, gonadal organ. So in the male, in the testis there is a spermatogenesis. Rapidly growing cells are in a woman, in the, that is nothing but the ovum, you know. So anti-cancer drug or cytotoxic drug, they will act on a rapidly growing cell. Rapidly growing cell मतलब cancer से, no doubt they will kill the cancer cell, known as a anti-cancer activity, known as anti-cancer activity. But at the same time they will kill the bone marrow cell. In the bone marrow cell you have three type of cell, है ना, platelet, RBC and WBC. तो RBC को किल करेगा तो एनीमिया हो जाएगा, WBC को किल करेगा तो न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, है ना, एंड वहां पे, है ना, so agranulocytosis and neutropenia okay, so that is the adverse effect due to bone marrow. And epithelial cell को डैमेज करेगा, so skin ulceration, skin pigmentation, mucosal lining को, GIT के mucosal lining जो होते हैं, GIT के mucosal lining उसको किल करेगा, epithelial cells of GIT and mucosal lining of skin. So mucositis, gastritis, diarrhea, vomiting, nausea, these are the adverse effect due to killing of mucosal lining. Then in the testis they will cause inhibition of spermatogenesis, so azoospermia. In the ovaries they will cause inhibition of ovum and they will cause dysmenorrhea, right? So these are the common adverse effect, है ना, ये सब क्या है, common adverse effect of a anti-cancer drug. चलिए अपन देखते हैं one by one how these common adverse effects are there. So right, so I will clear this. तो पहला एडवर्स इफेक्ट क्या है, सो बोन मैरो. first they will act on a bone marrow, because एंटी कैंसर ड्रग क्या है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो है, जैसे कैंसर सेल एंड बाकी रैपिडली डिवाइडिंग नॉर्मल सेल्स. सो along with the killing rapidly dividing cancer cell, एक एंटी कैंसर ड्रग will kill a normally rapidly dividing cells. So actively dividing cells are in a bone marrow. So depression of bone marrow or suppression of bone marrow, so that is the result, and result of this is a granulocytopenia, means decrease in the granulocytes in the, है ना, then agranulocytosis, okay, agranulocytosis, then thrombocytopenia means decreased platelet in the blood, aplastic anemia due to RBC destruction, which leads to bleeding and infection, okay, that is the main adverse effect, okay. Along with that, lymphoidal, okay, lymphoreticular tissue, so जो lymphoidal tissue होता है, lymph nodes, lymph glands, so again over there also lymphocytopenia decrease in the, that leads to, मतलब lymphocytopenia मतलब decreased lymph cells, lymphatic gland, lymphatic cells का काम होता है कि immunity. So because of the destruction of lymphoidal tissue there is a decreased cell mediated as well as humoral immunity. तो both ends of immunity are decreased, and जब immunity कम होगा, so because of this there is damage of epithelial surface and you will get a opportunistic infection like fungus, virus, toxoplasma. अगर आपका lymphatic tissue ही डैमेज कर दिया तो आपको opportunistic infections होता है, मतलब बाकी लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे. जब आप ही खुद सशक्त नहीं हो, आप ही खुद स्ट्रांग नहीं हो, तो ऑब्वियसली बाकी लोग अटैक करेंगे. तो वैसे ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब होगा तो बाकी इन्फेक्शन अटैक करेंगे. सो बिकॉज ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग यू विल गेट दीज इन्फेक्शंस, ओके, लाइक मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज नथिंग बट द कैंडिडिया अल्बिकस. देन, है ना, बाकी जो वायरस होता है जैसे नॉर्मली एडेनो वायरस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, राइट. So they are the another adverse effect because of the damaging, okay. So anti-cancer drug they will damage the rapidly dividing cells of your GIT. Oral cavity में भी क्या है, epithelial cells होते हैं. In the oral cavity epithelial cells they are destructed. Due to that there is a ulceration, ulcer हो जाएगा, xerostomia, then infection caused by, you know, infections, and mostly they are caused by alkylating agents and anti-cancer antibiotics. ओरल कैविटी में भी आपका अल्सरेशन होगा, ओरल कैविटी में आपका म्यूकोसल लाइनिंग खराब हो जाएगा. इन द जीआईटी, इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आल्सो, सो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड म्यूकस लाइनिंग, सो म्यूकोसाइटिस,
इंफ्लेमेशन ऑफ म्यूकस, अल्सरेशन, देन ब्लीडिंग, जीआईटी ब्लीडिंग हो जाएगा, डायरिया करेगा, नोशिया करेगा एंड वोमिटिंग, नोशिया वोमिटिंग डायरिया. सो अगेन ऑन द स्किन दे कैन कॉज एलोपेसिया. एलोपेसिया मतलब क्या, जो हेयर फॉलिकल होता है आपका, हेयर फॉलिकल. तो इन द हेयर फॉलिकल देर इज अ एक्टिवली ग्रोइंग सेल. हेयर फॉलिकल क्या होता है, एक्टिवली ग्रोइंग सेल होता है. हेयर फॉलिकल इज एक्टिवली ग्रोइंग सेल एंड बिकॉज ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग दे एक्ट ऑन अ रैपिडली ग्रोइंग सेल. हेयर फॉलिकल को डिस्टर्ब करता है, दैट्स व्हाई दैट कॉजेज एलोपेसिया, मतलब लॉस ऑफ हेयर. एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर. तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका मिनॉक्सिडिल. सो देयर इज वन ड्रग नोन एज मिनॉक्सिडिल which is drug of choice in the alopecia. alopecia में DOC को नहीं, drug of choice in the alopecia minoxidil, ये अपन बाद में कभी भी आएगा आपको. then due to inhibition of okay on the skin they will cause dermatitis. dermatitis को करेगा epithelial cell को डैमेज करके. then skin ulceration right. so they are the adverse effect. again we'll see the next point. so you can remember the common adverse effect of anti-cancer drug. नॉर्मली एंटी कैंसर ड्रग ये एडवर्स इफेक्ट करते हैं, बट एवरी ड्रग हैज देयर स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो. हर एक ड्रग का स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट भी है, वो अपन इंडिविजुअल ड्रग में देखेंगे. नाउ गोनेडल ऑर्गन, जो आपके गोनेडल ऑर्गन्स है इन द मेल एंड फीमेल, तो गोनेडल ऑर्गन्स में क्या होता है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. सो लाइक इन द टेस्टिस देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. सो एंटी कैंसर ड्रग एज अ किलिंग द स्पर्म्स, दे विल किल द स्पर्म्स. ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया मतलब absence of sperms. then impotence in the male, inhibition of ovulation in the female that causes the amenorrhea मतलब unnecessary bleeding in the women's. then also causes the mutagenesis, जीन भी चेंज करेगा right. then on the fetus, अगर pregnant woman कोई anti cancer drug यूज करता है, so if there is a prescription of anti cancer drug in the pregnant woman, so what all type of toxicity mainly on a development, they will cause developmental abnormality. तो बच्चा जो है माँ के पेट में, माँ ने अगर एंटी कैंसर ड्रग ले लिया तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट होगा, तो बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा एंड दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगा उसका, है ना, कोई भी एक पार्ट उसका अफेक्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. अगेन if you use a anti-cancer drug in the pregnant woman, that leads to abortion and death of that fetus, right. carcinogenicity, all anti-cancer drug, जितने भी anti-cancer drug है, all anti-cancer drug also has a carcinogenicity. मतलब जितने भी anti-cancer drug है उनको सबको क्या adverse effect होगा, all anti-cancer drug has adverse effect like they are also carcinogenic. जितने भी anti-cancer drug है, all anti-cancer drug they are a carcinogenic in nature. all anti-cancer drug they are carcinogenic in nature and they can cause secondary carcinoma. they can cause secondary cancer like leukemia मतलब blood cancer, lymphoma मतलब cancer of lymphatic gland, cytotumor, then because of their depletion of immunity. तो जितने भी एंटी कैंसर ड्रग है उनको बोन मैरो टॉक्सिटी है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को मार देगा, लिम्फोइडल रेटिकुलर टिश्यू मतलब लिम्फ सेल को मार देगा, लिम्फोइडिक ग्लैंड को मार देगा. उसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जाएगा. ओरल कैविटी में अल्सरेशन करेगा, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, राइट. देन जीआईटी के ऊपर इपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी लाइनिंग दे आर डैमेज्ड बाय एंटी कैंसर ड्रग्स, दे विल कॉज म्यूकोसाइटिस, अल्सरेशन, ब्लीडिंग, डायरिया, नोशिया, वोमिटिंग. बाद में स्किन में क्या करेगा, स्किन में इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस एंड स्किन अल्सरेशन एज वेल एज एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर. गोनेडल ऑर्गन्स में एजोस्पर्मिया एंड क्या करेगा, इंपोर्टेंस करेगा. वुमेन्स में म्यूटाजेनेसिस, ओवुलेशन को सप्रेस करेगा. फीटस का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा, टेराटोजेनिक. ओके, सो फीटस में यहाँ पे एक टर्म में, इफ यू वांट टू से दिस एडवर्स इफेक्ट इन वन टर्म, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस एडवर्स इफेक्ट इन वन टर्म, सो दे कैन कॉज टेराटोजेनिसिटी. ऑल एंटी कैंसर ड्रग आर टेराटोजेनिक इन नेचर. तो एंटी कैंसर ड्रग क्या है भाई, टेराटोजेनिक है. all anti-cancer drugs are teratogenic in nature. Then they are also carcinogenic in nature. सब carcinogenic. हाइपरयूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगा. तो हाइपरयूरिसीमिया, तो मैंने उस टाइम पे बोला था मिया मतलब ब्लड, रिया मतलब यूरिन. तो जो भी ब्लड के रिलेटेड है उसको मिया MIA, और जो भी यूरिन के रिलेटेड है उसको रिया RIA, है ना. तो सपोज, है ना, जो लेवल बढ़ गया है ब्लड में तो उसको बोलेंगे हाइपर,
मिया, है ना। तो हाइपर यूरिसेमिया मतलब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स आर मोस्ट ऑफ देम आर एंटी मेटाबोलाइट एंड दे विल इनहिबिट द न्यूक्लियोटाइड एंड देयर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म न्यूक्लियोटाइड का बढ़ता है कैंसर में, दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग कॉजेस हाइपर यूरिसेमिया, मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन एंड यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो बोन मैरो सप्रेशन, लिम्फोड, रेटिकुलर टिश्यू, ओरल कैविटी, GIT, skin, gonadal organ, fetus, carcinogenicity and hyperuricemia. So they are the common adverse event. ये सब क्या है? They are the general toxicity. General toxicity मतलब क्या? Common adverse event of anti-cancer drug, right? So we'll see now. We have seen the alkylating agent. We have seen the anti-metabolite. Now we'll see the next part. Next is nothing but the okay. We have seen that. We'll see the next part. So just beta. See the next part. Next part is nothing but the so next part is nothing but the anti-cancer antibiotics and we'll see that. So जैसे antibacterial drugs होते हैं उसके लिए antibiotics होते हैं, so like that in a cancer also some antibiotics they are known as a they are having cell toxicity, some anti-cancer antibiotics. So anti-cancer antibiotics, right? Anti-cancer antibiotics, I hope I am audible you clearly. So next part is anti-cancer antibiotics. So there are few antibiotics, वहाँ पे कुछ antibiotics है जो कैंसर में यूज करते हैं जो सेल को टॉक्सिटी करते हैं। Now anti-cancer antibiotics, so first is nothing but the actinomycin D. नाम क्या है भाई? actinomycin D. actinomycin D and it is also known as dactinomycin. इसको ही अपन dactinomycin बोलते हैं, actinomycin D और dactinomycin, है ना, actinomycin D called as dactinomycin. Now it was obtained from, ये एंटीबायोटिक कहाँ से आता है? It is obtained from, it is obtained from streptomyces. So this antibiotic was obtained from streptomyces and it will block the DNA dependent RNA synthesis. तो इसका मैकेनिज्म क्या है? What is the mechanism of actinomycin? So actinomycin is also known as dactinomycin and it will block the DNA dependent RNA synthesis. मतलब ये RNA synthesis नहीं होने का, है ना। नॉर्मली क्या होता है देखो, सबसे पहले DNA, सबसे पहले क्या आता है? DNA तो सबसे पहले डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए विल बी कॉपीड, रेप्लिकेशन, ओके। उसके बाद में रेप्लिकेशन के बाद में डीएनए से बनेगा आरएनए। डीएनए से बनेगा आरएनए, नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ डीएनए, कॉपीज ऑफ डीएनए नोन एज रेप्लिकेशन, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स, फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स नोन एज अ ट्रांसलेशन, है ना। पहले क्या होगा? डीएनए के रेप्लिकेशन होगा, डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनेंगे, नोन एज अ डीएनए रेप्लिकेशन एंड फ्रॉम दैट डीएनए आरएनए इज मेड, ओके। आरएनए का जो प्रोसेस है बनने का, सो फ्रॉम डीएनए आरएनए इज मेड नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड द लास्ट प्रोसेस फ्रॉम आरएनए प्रोटीन्स आर मेड known as a translation, and all these process known as central dogma of life. Then we'll see the biochemistry, I will explain you these things again, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनता है ना। डीएनए का एग्जैक्टली उसका आइडेंटिफायर, डीएनए का पहले डीएनए का, है ना, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होके डीएनए का कॉपी बनता है, उसको अपन बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बाद में उसका बनता है आरएनए, आरएनए का डीएनए से आरएनए बनने के लिए उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड लास्टली ट्रांसलेशन, ठीक है। सो एक्टिनोमाइसिन डी नोन एज द डैक्टिनोमाइसिन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमाइसिन डी इज आल्सो नोन एज डैक्टिनोमाइसिन। सो इट इज द एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज एंड व्हिच एक्ट बाय ब्लॉकिंग द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। मतलब ये बेसिकली आरएनए का सिंथेसिस नहीं होने देगा एंड आरएनए का सिंथेसिस नहीं होने देगा एंड उसके कारण क्या होगा? सेल को डेथ हो जाएगा। तो इट विल प्रिवेंट द
synthesis of RNA and because of that cell will die. It is as simple as that. ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऐसा है. So adverse reactions they are similar to meclorethamine. जैसे अल्कलाइटिंग एजेंट का ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट है वैसे ही उसका एडवर्स इफेक्ट है. नेक्स्ट आता है रुबिडोमाइसिन. नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज रुबिडोमाइसिन. इसका नाम है रुबिडोमाइसिन. इट इज आल्सो नोन एज डाउनोरुबिसिन. रुबिडोमाइसिन को ही डाउनोरुबिसिन बोलते हैं एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस कोइरुलोरुबिडस. Streptomyces coirulorubitus. So it is used along with the vincristine in the pregnancy in case of acute leukemia in the children. तो ये leukemia में blood cancer में childrens में use करते हैं. Now इसका mechanism क्या है, how it will act? तो it act via DNA dependent RNA polymerase और DNA dependent RNA synthesis inhibitor. मतलब वही it blocks the DNA dependent RNA synthesis. तो same ये एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रुबिडोमाइसिन दैट इज डाउनोरुबिसिन एंड एक्टिनोमाइसिन डी बोथ आर द सेम. दे इनहिबिट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस. तो इनका एडवर्स इफेक्ट क्या है रुबिडोमाइसिन का, बोन मैरो सप्रेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन एंड अदर कॉमन एडवर्स इफेक्ट है ना. ये दोनों का मैकेनिज्म सेम है. तो देखो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ CDL. सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है, सबसे पहले डीएनए. तो डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड. डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा. तो सिंथेसिस और मेकिंग ऑफ डीएनए कॉपीज नोन एज अ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन. डीएनए से बनेगा आरएनए. डीएनए से बनता है आरएनए नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए बनेगा है ना. डीएनए का रेप्लिकेशन होके बाद में डीएनए का आरएनए बनेगा. आरएनए नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड बाद में आरएनए का क्या बनता है, आरएनए का प्रोटीन बनता है. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए नोन एज अ ट्रांसलेशन. Replication of DNA, that is a multiple copies of DNA are formed in the cell and from DNA RNA is synthesized known as a transcription and from RNA proteins are synthesized known as a translation. तो ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये जो प्रोसेस होता है बायोकेमिस्ट्री में अपन देखेंगे न्यूक्लिक एसिड चैप्टर में इन द डिटेल. बट दिस इज नोन एज अ सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. इसको अपन सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोलते हैं. सो एक्टिनोमाइसिन आल्सो नोन एज एक्टिनोमाइसिन फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज ब्लॉक द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस. रुबिडोमाइसिन आल्सो नोन एज डाउनोरुबिसिन एंड ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस है ना कोइरुलोरुबिडस. स्ट्रेप्टोमाइसिस कोइरुलोरुबिडस and it is used in the leukemia in the pregnant woman, okay, in the children's and act by inhibiting the DNA dependent RNA synthesis. Again next antibiotic is a doxorubicin. देखो actinomycin D, rubidomycin and doxorubicin है ना. So it is also known as adriamycin. ये जो synonyms है, synonyms के ऊपर क्वेश्चन आता है. also known as adriamycin. doxorubicin also known as adriamycin and obtained from Streptomyces nuticus. Streptomyces nuticus. Streptomyces जो बैक्टीरिया है Streptomyces nuticus है ना. P silent nuticus. Streptomyces nuticus से आता है and it is a inhibitor of topoisomerase 2. भाई topoisomerase 2 का रोल क्या होता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में होता है it prevent the supercoiling. But topoisomerase when we'll see the DNA replication, when we'll see the DNA replication in the biochemistry, at that time you will get to know, you will understand in a better way what is the role of topoisomerase 1 topoisomerase 2. तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक साइड से डीएनए ओपन होता है ना. डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड होता है. तो जब रेप्लिकेशन होता है एक साइड से ओपन होता है एंड एक साइड पे वैसे ही ब्लंट एंड रहता है. तो एक साइड पे जब ओपन होता रहता है और वहाँ पे जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, 2 स्टैंड से 4 स्टैंड बनेंगे. लेकिन ये एक साइड पे तो ब्लंट है ना, बंधा है ना. तो जहां से एक साइड से ओपन होता है एक साइड से है ना. जैसे आप एक रोप है आपके पास, क्या है, आपके पास एक रस्सी है. तो रस्सी में देखो 2 ट्विस्टेड होता है, रोप ट्विस्टेड लैडर होता है. तो एक साइड से अगर ओपन करेंगे और एक साइड आप बांध के रखेंगे तो क्या होगा, एक साइड से तो ओपन होगा रोप पर एक साइड पे क्या होगा, टेंशन आ जाएगा. सो दैट इज अ सुपर कॉइलिंग. सो ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन एट द वन एंड there is a replication and at the second end there is a supercoiling.
नाउ दैट सुपर कॉलिंग शुड बी रिलीव्ड, दैट इज रोल ऑफ डीएनए टोपोआइसोमरेज। वही रोल होता है टोपोआइसोमरेज का कि वो सुपर कॉलिंग रिलीव करता है, राइट। नाउ सो डॉक्सोरोबिसिन inhibit the non-specifically topoisomerase 2 and interfere with the DNA replication। ये DNA replication नहीं होने देगा, DNA का replication नहीं होगा तो है ना, यम फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, DNA का replication होता है। एस फेज में DNA replication नहीं होगा तो अब इसलिए ये क्या करेगा, फिर सेल डिवीजन नहीं होने। सो इट इज यूज्ड इन द lympholytic blastoma, lympholytic acute lymphoblastic leukemia, acute lymphoblastic leukemia and lymphoblastic lymphoma। तो ये लिम्फेटिक कैंसर में यूज किया जाता है। लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, सार्कोमा इन पेशेंट हु आर फेल्ड टू रिस्पॉन्ड द और हैड अ रिलैप्स विद द स्टॉपिंग क्या स्टैंडर्ड केमोथेरेपी। मतलब क्या कि डॉक्सोरोबिसिन इज आल्सो नोन एज एड्रियामाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोटिकस, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोटिकस इसका मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट द डीएनए टोपोआइसोमरेज 2, इंटरफियर विद द डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा, राइट। नाउ इट इज यूज्ड इन द लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड आल्सो लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, सार्कोमा इन द पेशेंट हु हैव फेल्ड टू रिस्पॉन्ड द स्टैंडर्ड थेरेपी। जो स्टैंडर्ड थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे या फिर स्टैंडर्ड थेरेपी का उनको रेजिस्टेंस आ चुका है उसमें, मतलब बाकी जो ड्रग है अल्कोलाइटिंग एजेंट हो गए उनको यूज करने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्सोरोबिसिन। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज इपिरुबिसिन। इपिरुबिसिन ये एक नया है, इसका डेरिवेटिव इपिरुबिसिन एंड इडारुबिसिन। इपिरुबिसिन एंड इडारुबिसिन दे आर द न्यू एनालॉग्स ऑफ डॉक्सोरोबिसिन एंड दे आर हैविंग मोर सेलुलर अपटेक, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आता है ब्लियोमाइसिन। नेक्स्ट मीन्स ब्लियोमाइसिन। तो ब्लियोमाइसिन है ना, so bleomycin, next is a bleomycin, so it is obtained from streptomyces verticalis। streptomyces verticalis इसका सोर्स है, it is obtained from streptomyces verticalis bacteria and it is used in the है ना, epidermoid cancer of skin, upper respiratory tract है ना, cancer of skin, epidermal cancer, then respiratory tract cancer, cancer of oral cavity and GIT tract, genitourinary tract, लिम्फोमा रेजिस्टेंट टू अदर ड्रग्स। तो मतलब है ना, तो यहाँ पे देखो एंटीबायोटिक जो है एंटी कैंसर, पहला है एक्टिनोमाइसिन डी, है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस विल ब्लॉक द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, राइट। देन रुबिडोमाइसिन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन रूबिसिन, सो इट विल इनहिबिट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। डॉक्सोरोबिसिन क्या करता है, डॉक्सोरोबिसिन इज नथिंग बट द डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, है ना। ब्लियोमाइसिन है ना, सोर्स एंड उसका सिनोनिम प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज नथिंग बट द मिटोमाइसिन सी। क्या नाम है, मिटोमाइसिन सी। कौन सा माइसिन, मिटोमाइसिन सी। तो अगेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वन स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज नोन एज स्ट्रेप्टोमाइसिस ओके, Streptomyces cespitosus। Mitomycin C is obtained from Streptomyces cespitosus and it is a cytotoxic like alkylating agent। मतलब ये भी क्या है, सेल को टॉक्सिक करता है अल्कलाइटिंग एजेंट की जैसे, मतलब यहाँ पे अल्कली या रेडिकल बना के ऐड डीएनए में या फिर एंजाइम्स में ऐड होता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इट इज यूज्ड इन द CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। हॉडकिंस डिसीज है ना, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, हॉडकिंस डिसीज। लोकल नेक्रोसिस, सीवियर बोन मैरो डिप्रेशन, मतलब एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे इसके, है ना। एडवर्स इफेक्ट है लोकल नेक्रोसिस, बोन मैरो डिप्रेशन एंड टॉक्सिक हेपेटाइटिस, यूरेमिया सिंड्रोम, है ना, ये एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट आता है मिथ्रामाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है मिथ्रामाइसिन। सो ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस लिटिगस, ओके, लीकैटस, स्ट्रेप्टोमाइसिस लीकैटस, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्लिकैटस बोल सकते हो या फिर लीकैटस बोल सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिस लीकैटस। नाउ इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द आरएनए सिंथेसिस यूजफुल इन द एम्ब्रोइनल सेल कार्सिनोमा ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में यूजफुल है एंड यूज्ड इन द पगेट डिसीज, पगेट डिसीज में भी यूजफुल है।
high doses it also suppresses the bone marrow. Myelosuppression मतलब bone marrow, so it will suppress the bone marrow, thrombocytopenia, liver damage, kidney damage and suppression of clotting factors. These are the adverse effect मिथ्रामाइसिन. ठीक है, ये हो गया एंटीबायोटिक्स. चलो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट. क्या है एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट? मतलब माइटोसिस को इनहिबिट करने वाले प्लांट प्रोडक्ट. एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट, माइटोसिस को इनहिबिट करने वाले प्लांट प्रोडक्ट है ना. माइटोसिस नहीं होने देंगे सेल का, स्पिंडल को डैमेज करेंगे या फिर साइटोस्केलेटन को डैमेज करेंगे. इसलिए आपने सेल देखा है, सेल में देखा है माइटोसिस मायोसिस. तो माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल का फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो अगर समझ में आएगा तभी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं तो कैंसर इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. समझने के लिए इजी है लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता. तो मोस्ट ऑफ द दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट. ये क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से आता है, अल्कोलॉइड्स है या फिर प्लांट में से कोई रेजिन अल्कोलॉइड्स ये है. ठीक है, सो प्लांट प्रोडक्ट. ठीक है, एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे विंका अल्कोलॉइड्स है, विंका अल्कोलॉइड्स, विंका अल्कोलॉइड्स. विंका अल्कोलॉइड्स कहाँ से आता है भाई? विंका अल्कोलॉइड्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कैथरांटियस रोजियस. विंका अल्कोलॉइड्स कहाँ से आएगा? कैथरांटियस रोजियस. तो कैथरांटियस रोजियस से ये प्लांट है, कैथरांटियस रोजियस फैमिली अपोसाइनेसी, एंड फ्रॉम दैट ये विंका अल्कोलॉइड्स आते हैं. और विंका अल्कोलॉइड्स, कैम्पोथिकेन, टोपोटिकेन, ये सब ड्रग क्या है? दे आर नथिंग बट द प्लांट प्रोडक्ट. तो इसमें विंका अल्कोलॉइड्स इज द फर्स्ट. देखो यहाँ पे विंका अल्कोलॉइड्स, विंका अल्कोलॉइड्स. तो विंका अल्कोलॉइड्स में आता है दो, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनोरलिबिन, है ना. एक आता है विनक्रिस्टिन, बीसी, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन. दूसरा आता है विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन एंड तीसरा आता है विनोरलिबिन, विनोरलिबिन, विनब्लास्टिन एंड विनोरलिबिन, विनोरलिबिन. तीन अल्कोलॉइड्स है. There are three alkaloids in the vinca which have anti-cancer properties. And पहला है alkaloids obtained from Catharantius roseus. Okay, vincristin, vinblastine, vindaceum and minorlebin, है ना. ये क्या है? एंटी कैंसर प्लांट प्रोडक्ट है. तो दे इनहिबिट द माइटोसिस. ये क्या करते हैं? माइटोसिस इनहिबिट करते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पहला है दे इनहिबिट द सेल माइटोसिस. सेल माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं. They inhibit the cell mitosis. Basically, they binds with the tubulin. ये tubulin क्या होता है? It is a tubulin is a cytoskeleton, है ना. इसमें दो टाइप होता है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन. तो it is a cytoskeleton. They binds with this tubulin and prevent the formation of mitotic spindle. Prevent the formation of mitotic spindle. तो spindle formation inhibit करता है. Therefore, they act as a spindle poison. That's why they are called as a spindle poison. एंड दैट्स व्हाई दो इनहिबिट द सेल डिवीजन. तो ये विंका अल्कोलॉइड्स जो है वो माइटोसिस इनहिबिट करेंगे. दे बाइंड्स टू ट्यूबुलिन, पर्टिकुलरली बीटा ट्यूबुलिन, एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. जब वहाँ पे सेपरेट होता है ना जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है ना, है ना, दो डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनते हैं सेल में. दे आर सेपरेटेड एंड दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग साइटोस्केलेटन. दैट इज नोन एज अ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नोन एज अ mitotic spindle. So that is prevented by this vinca alkaloids. Vinca alkaloids prevent the mitotic spindle formation and inhibit the cell division. तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है भाई? है ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. रिमेंबर ओनली 0.1%, 0.4% अल्कोलॉइड्स आ रही ना विंका. मतलब अगर 1 टन आप विंका अल्कोलॉइड का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो तब जाके आपको यहाँ पे 1 kg मिलेगा अल्कोलॉइड्स, राइट. सो दे इनहिबिट द कैंसर इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल. ओके, तो इनहिबिशन ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड ट्यूमर डिस्पाइट ऑफ देयर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी दीज अल्कोलॉइड्स दे आर ऑफ नो हैविंग क्रॉस रेजिस्टेंस. मतलब क्या कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन दे आर हैविंग सेम केमिकल स्ट्रक्चर. थोड़ा बहुत केमिकल स्ट्रक्चर उनका सेम है. डिस्पाइट ऑफ केमिकल सिमिलरिटी दे विल नॉट हैव क्रॉस रेजिस्टेंस. मतलब अगर
विनक्रिस्टिन को क्रॉस रेजिस्टेंस आ गया, विनक्रिस्टिन को रेजिस्टेंस आ गया तो उसका विनब्लास्टिन को नहीं आएगा, दे विल नॉट हैव क्रॉस रेजिस्टेंस नाउ, है ना। व्हाट आर द मेजर एडवर्स इफेक्ट? मेजर एडवर्स इफेक्ट देखो, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय विंक अल्कोलाइट्स, विंक अल्कोलाइट्स प्रोड्यूसेस द न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, सो न्यूरोटॉक्सिसिटी है, इनको एडवर्स इफेक्ट क्या है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट दिस neurological toxicity. So in the neurological effect they produce the peripheral neuropathy, peripheral neuropathy मतलब क्या, peripheral nerve जो है ना उसका inflammation करेगी, peripheral neuropathy, and they can cause interfere, they will interfere with the neurohumoral transmission, तो nerve transmission है उसमें interfere करते हैं, and they cause mental depression, they can cause ataxia, है ना, tremors, है ना, tremors, ataxia, tremors मतलब involuntary movement of your muscles, involuntary contraction of your muscle. These are the known as the neurotoxicity. Okay, they can cause peripheral neuropathy, मतलब peripheral nerves का है ना डैमेज करता है, neurohumoral transmission है ना, they will affect the neuronal transmission. They can cause mental depression, ataxia, tremors. ये neurotoxicity है. So they are not used intravenously because of their neurotoxicity. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? ओके, विनब्लास्टिन इज अ मोर टॉक्सिक टू द बोन मैरो, तो विनब्लास्टिन मोर बोन मैरो को टॉक्सिक करता है, एंड विनक्रिस्टिन कॉजेज द न्यूरोटॉक्सिटी, है ना। तो देखो, विनब्लास्टिन इज अ बोन मैरो सप्रेसेंट एंड विनक्रिस्टिन इज अ न्यूरोटॉक्सिक, तो एंड आल्सो दे कॉजेज द एलोपेसिया, नोशिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, मेंटल डिप्रेशन, है ना, मेंटल डिप्रेशन, ये एडवर्स इफेक्ट है। कॉन्स्टिपेशन आर कॉमन एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, मतलब क्या कि विनब्लास्टिन जो है वो बोन मैरो को टॉक्सिसिटी ज्यादा करेगा, है ना, विनब्लास्टिन मतलब एनीमिया वगैरह, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रानुलोसाइटोसिस, है ना, वो करेगा, एंड विनक्रिस्टिन इज मोर टॉक्सिक टू द न्यूरोटॉक्सिटी, मतलब विनब्लास्टिन बोन मैरो को टॉक्सिसिटी करता है ज्यादा और न्यूरोटॉक्सिटी कम करता है, लेकिन विनक्रिस्टिन न्यूरोटॉक्सिटी ज्यादा करता है, बोन मैरो को ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, ये मेन है। प्लस इन एडिशन टू दोनों भी क्या करते हैं, एलोपेसिया, नोशिया, वोमिटिंग, मेंटल डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, है ना। क्रैनियल नर्व का पाल्सी मतलब क्रैनियल नर्व को डैमेज करेगा, क्रैनियल नर्व पाल्सी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड न्यूरोटॉक्सिटी, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालिटिक इलियस, दे आर आल्सो टेराटोजेनिक इन द एनिमल, ये टेराटोजेनिसिटी भी करते हैं। इसका यूज क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ दिस विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन? सो इट इज यूज्ड इन द हार्डकिंस डिसीज, के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2024 में। विनब्लास्टिन इज यूज्ड इन द हार्डकिंस डिसीज एंड अदर लिम्फोमा, जो कार्सिनोमा मिथोट्रिक्सेट के रेजिस्टेंट है, मतलब दोज पेशेंट व्हिच आर रेजिस्टेंट टू मिथोट्रिक्सेट, सो मिथोट्रिक्सेट रेजिस्टेंट पेशेंट में इसमें यूज करेंगे। सो मिथोट्रिक्सेट रेजिस्टेंट कार्सिनोमा एंड लिम्फोसार्कोमा should not be used in the patient with WBC count less than 4000, है ना, जिसका WBC काउंट 4000 से कम है उसमें ये यूज नहीं करना है। नाउ विनक्रिस्टिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, AML, है ना, एक्यूट लिम्फोलाइटिक ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस में लिम्फोलाइटिक ल्यूकेमिया में विनक्रिस्टिन यूज करना है, राइट। दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, तो याद रखना है इसमें, दे आर द स्पिंडल पॉइजन, दे इनहिबिट द स्पिंडल फॉर्मेशन बाय बाइंडिंग टू ए बीटा ट्यूबुलिन, एक चीज ये, दूसरा चीज ये है कि विनब्लास्टिन हैज अ मोर बोन मैरो टॉक्सिसिटी, विनक्रिस्टिन हैज अ मोर न्यूरोटॉक्सिसिटी, एंड देयर आर सम कॉमन एडवर्स इफेक्ट लाइक एलोपेसिया, नोशिया, वोमिटिंग, मेंटल डिप्रेशन, ओके, क्रैनियल नर्व पाल्सी, ओके, पैरालिटिक इलियस, ऑल दिस आर, ठीक है। यूजेस क्या है, दे आर यूज्ड इन द हार्डकिंस, ओके, हार्डकिंस डिसीज, याद रखना है, हार्डकिंस डिसीज मतलब एक कैंसर होता है टाइप का, लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर होता है, and other lymphomas, lymphatic cancer, and Hodgkin disease also lymphoma, type of lymphoma, and they should not be used in the patient whose WBC is less than 4000 cubic centimeter, okay, cubic millimeter, and vincristin is used in the children for acute lympholytic leukemia, okay। तो next देखते हैं, next plant product paclitaxel, next
प्लांट प्रोडक्ट क्या है, पैक्लीटैक्सेल। इसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर एडवर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। नॉट ओनली इन द जीपैट नाइपर आल्सो ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एग्जाम में। फार्मासिस्ट में थोड़ा कम आता है बिकॉज फार्मासिस्ट में डिप्लोमा लेवल का एग्जाम सिलेबस होता है। तो मोस्टली यहाँ पे जीपैट नाइपर डीआई पीआई को टारगेट करेंगे, जीपैट नाइपर डीआई। ठीक है, पैक्लीटैक्सेल क्या नाम है भाई, पैक्लीटैक्सेल, पैक्लीटैक्सेल, डोसीटैक्सेल। दो ड्रग आता है इसमें, पैक्लीटैक्सेल एंड डोसीटैक्सेल, पैक्लीटैक्सेल एंड डोसीटैक्सेल, है ना। तो ओके, सो दिस ड्रग वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम वेस्टर्न यू ट्री। एक वेस्टर्न यू ट्री से ये बना है, मतलब इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम वेस्टर्न यू ट्री। एंड इसका मैकेनिज्म क्या है, इट बाइंड्स विद द बीटा सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन एंड कॉजेज द स्टेबल एंड नॉन फंक्शनल माइक्रोट्यूबुल बंडल। मतलब जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होने वाला है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है, अनस्टेबल। इट कॉजेज द स्टेबिलाईजेशन, ओके, इट कॉजेज स्टेबिलाईजेशन एंड नॉन फंक्शनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल। So bite with the tubulin causes the stabilization and non-functional of microtubule formation। मतलब माइक्रोट्यूबुल क्या करेगा, माइक्रोट्यूबुल स्टैटिक होगा और वहाँ पे वो मूवेबल नहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा। और माइक्रोट्यूबुल स्टेबल है तो मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स विल नॉट बी पॉसिबल। तो क्रोमोसोम को मूव करने वाला कौन है, माइक्रोट्यूबुल है, वो क्या है, साइटोस्केलेटन। तो उसको स्टेबिलाईज करता है ये कौन, पैक्लीटैक्सेल। बाय बाइंडिंग विद द बीटा सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन इट विल cause stabilization of microtubule and non-functioning of microtubule leads to arrest of, है ना, mitosis। so mitosis arrest करेगा, right, and interfere with the mitosis, it induces the apoptosis। बाद में ये apoptosis induce करता है, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। and has a anti androgenic property भी, मतलब एंड्रोजन को इनिबिट करेगा। तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कहाँ पे यूज करता है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, इसोफेगल, ओवरी एंड हेड एंड नेक कैंसर, है ना। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर ऑफ लंग, इसोफेगस कैंसर, ओवरी कैंसर ऑफ ओवरी, हेड एंड नेक। तो एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्स रिएक्शन इज नथिंग बट द बोन मैरो टॉक्सिटी। न्यूट्रोपेनिया करेगा, एसिम्प्टोमेटिक ब्रैडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट बढ़ा देगा। देन वेंट्रिकुलर टैक्कार्डिया, तो हार्ट रेट बढ़ा देगा। एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ ईयर, न्यूरोपैथी, देन स्किन डिसीज, स्किन रैश एंड अदर हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। डोसीटैक्सेल क्या है, डोसीटैक्सेल इज नथिंग बट द न्यू एनालॉग ऑफ पैक्लीटैक्सेल। डोसीटैक्सेल क्या है, इट इज अ न्यू एनालॉग ऑफ पैक्लीटैक्सेल विद अ लॉन्गर हाफ लाइफ, मतलब ये लॉन्ग हाफ लाइफ होता है, इसका सस्टेन्ड एक्शन होता है, लॉन्गर हाफ लाइफ। नेक्स्ट होता है ड्रग इटोपोसाइड, प्लांट प्रोडक्ट में आता है नेक्स्ट इटोपोसाइड। इटोपोसाइड क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोडोफाइलम। इटोपोसाइड को बोलते हैं अपन पोडोफाइलम टॉक्सिन, पोडोफाइलम टॉक्सिन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोडोफाइलम स्पीसीज एंड प्रिपेयर टॉक्सिन। इसका मैकेनिज्म क्या है, इनिबिट द डीएनए टोपोआइसोमरेज 2, प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग एंड विच लीड्स टू डैमेज ऑफ डीएनए एंड इट इज यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ कैंसर। डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं, मैकेनिज्म याद रखो। नेक्स्ट आता है कैम्पोथिकेन, कैम्पोथिकेन एनालॉग। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चाइनीज ट्री। चाइनीज में एक ट्री आता है, उसका नाम है कैम्पोथिका एक्यूमिनेटा, कैम्पोथिका एक्यूमिनेटा। एंड इन फ्रॉम दिस प्लांट कैम्पोथिकेन एंड इरिनोटिकेन, टोपोटिकेन एंड इरिनोटिकेन। तो पहला आया था कैम्पोथिकेन, उसके बाद में टोपोटिकेन एंड इरिनोटिकेन। इरिनोटिकेन, टोपोटिकेन, दे इनिबिट द टोपोआइसोमरेज 1, है ना। क्लासिफिकेशन में देखा है टोपोआइसोमरेज 1 इरिनोटिकेन, टोपोटिकेन, टोपोआइसोमरेज इनिबिटर, टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर। इटोपोसाइड्स क्या है, इटोपोसाइड्स आर टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर, देयरफॉर इनिबिट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। तो पैक्लीटैक्सेल, इटोपोसाइड, टेनोपोसाइड्स, है ना, कैम्पोथिकेन, इरिनोटिकेन, टोपोटिकेन, देन आपका विंकार्कुलेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, आई होप आई एम ऑडिबल, ऑडिबल है ना, आर यू गेटिंग, आई एम आई ऑडिबल, समझ में आ रहा है, यस लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ रहा है। अगर कुछ पॉइंट रिपीट करना है तो आई कैन रिपीट। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग इज नथिंग बट द हार्मोनल ड्रग। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, हार्मोनल ड्रग्स। नेक्स्ट इज हार्मोनल ड्रग्स।
नेक्स्ट कैटेगरी आता है हार्मोनल ड्रग्स। नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका हार्मोनल ड्रग्स। नेक्स्ट कैटेगरी आता है वो हार्मोनल ड्रग्स। हार्मोनल ड्रग्स में क्या है, फर्स्ट विल सी द इंट्रोडक्शन व्हाई हार्मोनल ड्रग्स दे आर यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी। तो हार्मोनल ड्रग क्यों यूज करना है, तो हार्मोनल ड्रग, ओके, हार्मोनल ड्रग में क्या आता है, हार्मोन्स, ठीक है, ऑल द हार्मोन्स लाइक योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, देन योर गोनेडल हार्मोन्स, जैसे आपका है ना एंड्रोजेंस एंड ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन। तो हार्मोनल ड्रग्स, हार्मोन्स। सो इंट्रोडक्शन, क्यों हार्मोन्स यूज करना है, सो हार्मोन्स एक्ट इन अ डिफरेंट वे लाइक एंटी कैंसर ड्रग। जो एंटी कैंसर ड्रग एक्ट करते हैं, जैसे कोई डीएनए को रेप्लिकेशन इनहिबिट करेगा, कोई टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करता है, कोई डीएनए का रेडिकलाइजेशन करता है, सम आर अल्कलाइटिंग एजेंट, सम आर द इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म, सम आर द एंटी मेटाबोलाइट। तो वैसा ये हार्मोनल ड्रग्स नहीं है। सो हार्मोनल ड्रग्स विल एक्ट ऑन अ डिफरेंट वे। हाउ हार्मोनल ड्रग्स दे विल एक्ट, सो हार्मोनल ड्रग्स एक्ट एज अ डिफरेंट एंटी कैंसर ड्रग्स। कैसा, देखो, because hormones are also involved in the cell growth, so hormones acts by a different way, so hormones act by a different way। first way क्या है भाई उनका, how they will act as anti cancer, how they are useful in the anti cancer, because they will inhibit the cell wall growth, so hormones inhibit the cell wall growth, how, है ना, so androgens they are used in the breast cancer and estrogen they are used in the prostate cancer। तो एंड्रोजन कहाँ पे यूज करते हैं, एंड्रोजेंस आर यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर। मतलब ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर इज रिलेटेड विद एक्सेसिव ईस्ट्रोजन। अगर ज़्यादा ईस्ट्रोजन हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। एक्सेसिव ईस्ट्रोजन एक्टिविटी इज सीन इन द ब्रेस्ट कैंसर, तो दैट्स वाई। तो एंड्रोजेंस मतलब टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस दे आर यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर एंड एस्ट्रोजेंस दे आर यूज्ड इन द प्रोस्टेट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल में, ये मेल में तो नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल में एंड प्रोस्टेट कैंसर होता है मेल में। दिस प्रोस्टेट कैंसर ऑकर्स इन द मेल, इन द मेल प्रोस्टेट कैंसर, है ना। तो प्रोस्टेट कैंसर मेल में होता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है। तो मेल हार्मोन्स आर यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर एंड female hormones are used in the prostate cancer, so they will inhibit the cell wall growth, so androgens inhibit the breast cancer cell wall growth and estrogens they are used in the prostate cancer। एक तो ये फर्स्ट वे, they inhibit the cell wall। second, stimulation of differentiation of cell and then which regain their ability to respond to the body's controlling system। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया इनिबिशन ऑफ सेल वॉल, है ना। दूसरा मैकेनिज्म क्या है भाई, हाउ हार्मोनल ड्रग्स दे विल एक्ट एज एंटी कैंसर ड्रग। सेकंड इज नथिंग बट द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। तो सेकंडली हार्मोन कैसे एक्ट होंगे, सेकंडली दे विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ व्हाट, they will cause stimulation of differentiation and differentiation of cell which then regain their ability। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रेरी आपको लग सकता है कि सर एंटी कैंसर ड्रग सेल को किल करने वाले, तो ये क्या कर रहे हैं, सेल को ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज करता है सेल डिफरेंशिएशन, इट विल इंक्रीज द सेल डिफरेंशिएशन नो डाउट इनिशियली, okay, it will increase the cell count, it will increase the cell differentiation which then regain their ability। बाद में देखो which then regain their ability to respond the body's controlling inhibitory mechanism। मतलब कैंसर में बेसिकली क्या हो रहा है, कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रहा है एंड कैंसरस सेल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग योर बॉडीज मैकेनिज्म। आपके बॉडी में क्या है, एक क्लॉक फिक्ट है आपके बॉडी में, कब सेल का ग्रोथ होगा, कब सेल मरेगा, when cell will be divided, when cell will die, so it is a fixed in your body। so in your body you have stimulating factor, you have inhibiting factor। stimulating factor में आता है आपका काइनेज, है ना, साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज। इनहिबिटरी फैक्टर में आता है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 जीन, राइट। तो
some hormones, they initially stimulate the cell growth, differentiation, and then now whatever cell grown, now that cell has a regain their capacity, regain their ability to respond the body's controlling mechanism. अभी ये नए जो सेल बनेंगे, ये सेल को क्या होगा, ये आपके बॉडी के कंट्रोल के मैकेनिज्म में होंगे, नहीं. फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन इन ब्रेस्ट कैंसर एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमन. तो थर्ड, हार्मोन्स हाउ दे विल एक्ट, दे विल कॉज सिलेक्टिव लाइसिस ऑफ ल्यूकेमिक लिम्फोसाइट. मतलब ये क्या करेंगे, ल्यूकेमिक लिम्फोसाइट जो है, जिसमें ल्यूकेमिया है ब्लड कैंसर में, जिसमें ल्यूकेमिया है वहाँ पे सिलेक्टिव लाइसिस मतलब सिलेक्टिव सेल डेथ. तो सिलेक्टिव लाइसिस इन द ल्यूकेमिक लिम्फोसाइट्स. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे आपका है ना प्रेडनिसोलोन, देन आपका बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन वगैरह, है ना, ट्राइमसोलोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना. हार्मोन्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, है ना, कि बाबा हार्मोन्स दे आर ऑफ मोस्टली थ्री टाइप. मतलब ये है ना, जो गोनेडल हार्मोन्स है, जो सेक्स हार्मोन है, वो तीन टाइप के होते हैं. एंड्रोजन्स होते हैं, है ना, जो मेल हार्मोन्स होते हैं. ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं. एंड तीसरा होता है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे are used, glucocorticoids, because of their direct lympholytic property, they are used in the myeloid and lympholytic leukemia. ठीक है. तो हार्मोन्स कैसे एक्ट करेंगे, हार्मोन्स फर्स्ट दे विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, फर्स्ट दे विल इनहिबिट द सेल वॉल ग्रोथ, सेकंड दे विल increase the cell growth and differentiation, but now whatever new cells are formed, they are reactive to your body's defense mechanism. And third is nothing but the selective lysis in the leukemic patient, है ना. तो फर्स्ट एक्शन है आपका इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल ग्रोथ. सेकंड, हार्मोन्स विल आल्सो स्टिमुलेट द डिफरेंशिएशन, बट नाउ न्यू सेल्स दे आर रिस्पॉन्डिंग योर बॉडीज कंट्रोलिंग मैकेनिज्म. थर्ड, selective lysis in the leukemic lymphocytes. And fourth, inhibition of circulating concentration of substance which stimulate the malignant cell. मतलब चौथा मैकेनिज्म क्या है, दे इनहिबिट द सर्कुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जो ब्लड में आपका जो सेल को स्टिमुलेट करने वाला, मैलिग्नेंट सेल को स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर है, जैसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो उसको इनहिबिट करेंगे. तो थायरॉक्सिन यूज्ड इन द थायराइड कैंसर. सो दैट्स हाउ हार्मोनल ड्रग विल एक्ट. सो विल सी फर्स्ट नोन एज ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन्स. सो एवरीबडी प्लीज कम लाइव में सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं मुझे, कभी 5 दिखते हैं, कभी 2 दिखते हैं, कभी 6 दिखते हैं, है ना. सो प्लीज कम लाइव. सो फर्स्ट वन इज ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन इंप्रूव द प्रोस्टेट कार्सिनोमा. ईस्ट्रोजन प्रोस्टेट कार्सिनोमा में यूज करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में यूज करते हैं. मेल्स में होता है प्रोस्टेट कैंसर मेल में होता है मोस्टली. एंड ईस्ट्रोजन विल इनहिबिट द प्रोस्टेट कैंसर. Similarly, okay, so improvement in the prostate cancer, similar benefit in the is given by synthetic analog like diethylstilbestrol. Adverse reaction क्या होगी, मेल्स में क्या करेंगे, ये gynecomastia and impotence. So when female hormones are used in the male, they can cause impotence and the gynecomastia. Impotence मतलब क्या, impotence means you lost the ability to reproduce. देख लेते हैं next. Am I audible to you? Next is the aromatase inhibitor. Next part is the aromatase inhibitor. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार. aromatase inhibitor. Next part है aromatase inhibitor. And aromatase inhibitor. So we'll see the role. Join everybody. Why you are not live? It is only for you. It is unlisted and only visible to this group. Next part क्या है भाई, next is the aromatase inhibitor. इतना simple language में आपको कोई नहीं बोलने वाला. Nobody will explain you in this language because मैं यहाँ पे आपको बहुत ही simple language में यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द एरोमेटेज इनहिबिटर. तो एरोमेटेज क्या है, एक एंजाइम है. एरोमेटेज क्या है, एक एंजाइम है.
एरोमेटिक्स का रोल क्या है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ एरोमेटिक्स, है ना, तो वो देख लीजिए, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स व्हिच इनहिबिट द एंजाइम एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स, तो एरोमेटिक्स क्या है भाई, एक एंजाइम है, so it is the enzyme responsible for the conversion of adrenal androgen androstenedione to the histone। मतलब एरोमेटिक्स का रोल क्या है, एरोमेटिक्स एंजाइम एक एंजाइम है जो क्या करता है आपका, है ना, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन मतलब क्या, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एंड एंड्रोस्टेनडायोन, मतलब ये भी एंड्रोजन है, एंड्रोजन एंड एंड्रोस्टेनडायोन दैट इज कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन, तो that is converted into estrogen। There is the role of aromatics by the enzyme aromatics. It will convert adrenal androgen and androstenedione to estrone। Now aromatization, okay, aromatization जो है ना, aromatization कहाँ पे होता है ना, मतलब ये साइक्लाइजेशन कहाँ होता है, एरोमेटाइजेशन ऑकर्स इन द बॉडी फैट, ये बॉडी फैट में होता है, ऑकर्स इन द बॉडी फैट। दिस सिंथेसिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दिस इज अ पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ईस्ट्रोजन जब बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है फीमेल में, ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ये देखो, है ना, जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन्स मेल हार्मोन्स, तो उससे बनता है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन बनाने के लिए कौन सा एंजाइम है, एरोमेटिक्स, है ना, एरोमेटिक्स एंजाइम। तो ईस्ट्रोजन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैंसर, सो ईस्ट्रोजन बढ़ता है। सो एरोमेटिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एड्रेनल एंड्रोजन एंड एंड्रोस्टेनडायोन टू द ईस्ट्रोन। द एरोमेटाइजेशन ऑकर्स इन द फैट, है ना, एडिपोज टिश्यू। This synthesis has an important role in the pathogenesis of your breast cancer in the menopausal woman। तो post menopausal woman मतलब क्या, जब 35 एज होता है वुमन का, आफ्टर 35, तो आफ्टर 35 एज ऑफ वुमन, आफ्टर 35 एज ऑफ वुमन, तो वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, देयर इज अ irregular menstrual cycle or stopping of menstrual cycle in the women after 35। 35 में वुमेन्स में menstrual cycle बंद हो जाता है, that is known as the post menopause period, that is known as the post menopause period, post menopause period, है ना, post menopause period। now देखो post menopause period known as a 35 हो गए, 35 के बाद में किसी में 35 में आता है, कोई लेडीज में 40 में आता है, 35 40 for safe side you can say 40, ठीक है। so after the 40s, so women's में menstrual cycle नहीं होता है, and that's why, okay, so most of the post menopausal women they are prone to the breast cancer, most of the post menopausal women they are prone to breast cancer, है ना, and in those women तो pathogenesis of breast cancer, pathogenesis क्या है कि androgen androstenedione is converted into estrone in the lipid tissue by the enzyme aromatics, right? Now inhibition of aromatase, okay, inhibition of aromatase will prevent or will treat the breast cancer, that's why aromatase inhibitors, so aromatase inhibitors कौन है भाई, so they are selective in the action and don't interfere with the internal glucocorticoids, internal synthesis of glucocorticoid, internal synthesis of glucose। so drug name is anastrozole and letrozole, anastrozole, letrozole, they are known as a aromatase inhibitor, they are known as a aromatase inhibitor, they are used in the treatment of estrogen positive breast cancer, estrogen positive breast cancer in the post menopausal woman, in post menopausal woman, ठीक है। ये नॉलेजेबल सेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोरियत फील होगी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना आपके कॉलेज में मिलेगा, ना ही सो कॉल्ड जीपैट कॉल सेंटर या फिर जीपैट गाइडेंस सेंटर, यहाँ पे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि इसको बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, राइट। सो रिमेंबर वन मोर थिंग, आफ्टर 35, है ना, आजकल क्या है कि आजकल वुमेंस में क्या है कि करियर का बहुत ज़्यादा फैड है, मतलब वुमेंस दे वांट करियर,
वुमेन्स दे वांट करियर, वुमेन्स दे वांट करियर। बट जो पुराने ज़माने के लोग थे, जैसे आपके दादाजी दादी, है ना, सो पुराने ज़माने के लोग थे, दे यूज टू मैरी ए गर्ल विद इन 20 years एज, है ना। ओके, ए गर्ल शुड मैरी विद इन, है ना, ए गर्ल शुड मैरी बिफोर 20 years। गर्ल्स में क्या है कि गर्ल्स में 20 साल के 20 साल के बाद 30 के पहले मैरी करना चाहिए। विद इन 20 to 30 यू हैव टू मैरी। फॉर गर्ल्स विद इन 30, विद इन 20 to 30 ए गर्ल्स शुड मैरी। वाई, है ना, बिकॉज विद इन 20 to 30 एज, है ना, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या फिर आपका जो है ना, जो एग होता है, in the 20 to 30 years in the girls menstrual cycle is regular, and in that period there is a highest oogenesis, there is a highest production of eggs, है ना, and that period, at that period, so that is a safe period for good conception, means whatever child is to be born they are healthy। तो 20 या 30 एज में गर्ल्स का शादी होता है, तो उसमें उसके जो बच्चे होने वाले हैं वो हेल्दी रहेंगे, उनको कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, उनमें कोई भी ये नहीं आएगा, है ना। अभी आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो व्हाट इज मीन बाय डाउन सिंड्रोम। एक टर्म आता है आपको डाउन सिंड्रोम। देयर इज वन डिसीज नोन एज अ डाउन सिंड्रोम। वहां पे एक डिसीज है डाउन सिंड्रोम। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस बोल रहा हूं मैं आपको, ओके, आउट ऑफ द सिलेबस बोल रहा हूं मैं। वहां पे एक टर्म है आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। नाउ डाउन सिंड्रोम किस में होता है मालूम है आपको? सो दोज, ओके, डाउन सिंड्रोम इज मोस्टली ऑकरिंग इन द फीटस। ओके, डाउन सिंड्रोम कहाँ पे हो रहा है? डाउन सिंड्रोम मोस्टली कब हो रहा है मैं तुम्हें? सो दोज लेडीज और दोज गर्ल्स हु आर मैरिंग आफ्टर 30, द गर्ल्स हु आर मैरिंग आफ्टर 30 और 35, 30 और 35, जो 30-35 के बीच में, है ना, जो गर्ल्स 30 एंड मोर देन 30, मान लीजिए 30-35 के बाद में जो मैरिज होता है, सो दोज बर्थ हु आर आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35, सो 99% चाइल्ड टू बी बोर्न आफ्टर 30-35 एज। जो गर्ल्स में 35 के बाद में शादी होके जो बच्चे जब बच्चे आएंगे इस दुनिया में, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। 30-35 के बाद में जिनका शादी होता है और उसके बाद में जो चाइल्ड्स आते हैं, सो मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। सो दैट्स वाई आपके जो पहले जमाने के जो लोग थे, है ना, पुराने दादाजी दादी जी, है ना, वो क्यों बोलते थे जल्दी शादी करने के लिए? कि उसके पीछे रीजन था, सो ए गर्ल चाइल्ड और ए गर्ल शुड मैरी विद इन 20 to 30, उसके बीच में ही उनको शादी करना चाहिए। एंड वट एवर चिल्ड्रंस आर देयर दे शुड कम बिफोर द एज ऑफ 35 के पहले ही आपका पूरा गृहस्थी बसना चाहिए। 35 के पहले आपका चाइल्डिंग, मतलब जो भी चाइल्ड्स वगैरह अगर होना है करना है आपको, तो वो 35 के बिफोर आ गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सब कुछ हेल्दी रहता है। सो आप चाइल्ड टू बी बोर्न आफ्टर 35, है ना। जो गर्ल्स की शादी 30 के बाद में होगी या 35 के बाद में हो गई, तो उनको जो चाइल्ड्स आएंगे उनमें 99% चांसेस होता है कि दे आर बोर्न विद द डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम किसमें है? तो 99% डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स और डाउन सिंड्रोम चाइल्ड्स दे आर इन द मैरिज दे आर इन द मैरिज आफ्टर 35 एज के बाद में जो मोस्ट ऑफ द बर्थ होते हैं, 35 एज के बाद में जो बर्थ होते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम 99% होता है। तो रिमेंबर दैट्स व्हाई our grandmother grandfather they used to insist the girls to marry before 30, ठीक है, ये आपको एडिशनल नॉलेज होगा, राइट। सो ओके, सो in the breast cancer these anastrozole and letrozole they are the drug used in the breast cancer, they are known as a aromatase inhibitor, we have seen the role, okay। चलो नेक्स्ट है, am I audible to you, are you getting my points?
Am I audible to you? Are you getting my points? समझ रहा है आपको? Next is nothing but the next drug is nothing but the tamoxifen. Tamoxifen. Next drug is nothing but the tamoxifen. तो tamoxifen क्या है भाई? एंटी एंड्रोजन. tamoxifen is nothing but the एंटी एंड्रोजन. तो जब अपन हार्मोन्स देखेंगे, हार्मोन्स एंड हार्मोन रिलेटेड ड्रग देखेंगे, देखो फार्माकोलॉजी इज अ इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट. फार्माकोलॉजी में क्या होता है? बहुत सारे इंटर रिलेशन होते हैं. ठीक है, एंटी एंड्रोजन. ओके, सो tamoxifen इज अ एंटी एस्ट्रोजन. सॉरी, tamoxifen इज अ एंटी एस्ट्रोजन. तो एस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन, tamoxifen इज अ एंटी एस्ट्रोजन. ओके ओके, इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर. ये स्टेरॉइड नहीं होता. मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड हार्मोन रिलेटेड ड्रग्स जो होते हैं, हार्मोन रिलेटेड ड्रग एंड हार्मोन, दे आर स्टेरॉइडल इन नेचर. बट tamoxifen is a non-steroid. Tamoxifen is a non-steroid and structural similar to diethylstilbestrol. तो diethylstilbestrol एक सिंथेटिक ड्रग होता है. diethylstilbestrol एक सिंथेटिक ड्रग होता है. इट इज एस्ट्रोजन. इट इज सिंथेटिक एस्ट्रोजन, बट स्ट्रक्चर इज नॉट अ स्टेरॉइड. तो मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइडल ड्रग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो होते हैं, उनका स्टेरॉइड होता है स्ट्रक्चर. बट कुछ ड्रग्स है जो नॉन स्टेरॉइडल है लेकिन हार्मोनल रिसेप्टर एगोनिस्ट है. tamoxifen is an anti-estrogen drug and it is not having steroid in the nature. It competes with the circulating estrogen binding site to the cytoplasmic estrogen receptor. मतलब क्या कि ये जो ड्रग है आपका, so tamoxifen will bind to the estrogen receptor and cytotoxic effect are characterized by cell death where cell which are responsive for the estrogen receptor. जो भी सेल एस्ट्रोजन रिसेप्टर को रिस्पॉन्सिव है वो सेल में सेल डेथ हो जाएगा. तो tamoxifen is एंटी एस्ट्रोजन which binds with the estrogen receptor, circulating estrogen receptor and kills the cell. So it is metabolized to active metabolite. उसका एक्टिव मेटाबॉलाइट होता है N-desmethyl tamoxifen. N-desmethyl tamoxifen. Active metabolite of this is nothing but the N-desmethyl tamoxifen. It is also having strong affinity towards the estrogen receptor. ये affinity क्या होता है अपन देखेंगे. इसके बाद में मैं जनरल फार्माकोलॉजी लूँगा आपका, ताकि आपके मोस्ट ऑफ द टर्म्स क्लियर हो जाए. तो स्ट्रॉन्ग affinity फॉर estrogen receptor, राइट है ना. tamoxifen है ना, antagonist to the estrogen receptor and also known as a selective estrogen receptor modulator. इसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. इसके एडवर्स रिएक्शन क्या है? हॉट फ्लशेस. मतलब आपका हॉट फ्लश हो जाएगा. मतलब ये नॉर्मली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है हॉट फ्लशेस. देन माइल्ड नोशिया, वोमिटिंग, बोन पेन, पेशेंट विद हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें कैल्शियम जस्ट लेवल ज़्यादा है उसमें बोन पेन और. देन वजाइनल ब्लीडिंग, ऑक्यूलर टॉक्सिटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है अपन देखेंगे. There is a clotting of blood in the veins known as a deep vein thrombosis. It is used in the treatment of breast cancer. Then excised tumor. excised मतलब जहाँ पे जो भी ट्यूमर में ऑपरेशन हो चुका है, excised ट्यूमर है ना, जहाँ पे सर्जिकली जो ट्यूमर रिमूव किया है वहाँ पे रिग्रोथ ना हो, इसलिए tamoxifen यूज करते हैं. Then new selective serotonin, new selective estrogen receptor modulator such as raloxifene. tamoxifen and raloxifene. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. देखो raloxifene are used to prevent the osteoporosis. Osteoporosis क्या होता है? Again osteoporosis मतलब क्या? After 35 age, in the ladies after 35, in the girls after 35 age, what happens? There is a decrease in the bone density. Bone में का calcium and minerals. There is a decrease in the bone density after 35 age, mostly in the women's. So osteoporosis. Because of that osteoporosis, अगर bone density कम हो गया, bone weak हो गई, तो आपको फ्रैक्चर होता है ना, फ्रैक्चर हो जाएगा, frequent fracture. Okay, so to prevent that, raloxifene is drug. So raloxifene drug is used in the osteoporosis also and in the cancer, breast cancer, the excised tumor. Okay, I hope I am audible, you are getting my points. समझ रहा है आपको? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट.
नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द प्रोजेस्टिन. प्रोजेस्टिन है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. देयर आर टू हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, व्हिच आर नोन एज द फीमेल हार्मोन. तो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है. और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल हार्मोन. तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे आर द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज नथिंग बट द मेल सेक्स हार्मोन. तो एस्ट्रोजन के बारे में अपन देखा है, एस्ट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द कैंसर. प्रोजेस्टेरॉन, नाउ प्रोलॉन्ग्ड unopposed stimulation of estrogen result in the endometrial carcinoma in the female. Okay. So prolonged or unstopped stimulation by estrogen results in the endometrial carcinoma in humans, है ना. So hydroxyprogesterone caproate, so hydroxyprogesterone caproate and megestrol acetate, they are used in the treatment of endometrial cancer. तो endometrium जो होता है, जो आपका है ना, आपका जो यूट्रस होता है फीमेल में, तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम होता है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस. सो कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन by estrogen, continuous stimulation by estrogen in the female, that is related with the endometrial cancer, right, endometrial cancer. So to treat that endometrial cancer, hydroxyprogesterone, progestins are used, hydroxyprogesterone caproate, then megestrol acetate. ये ड्रग के नाम है, प्रोजेस्टेन के नाम है, प्रोजेस्टेरॉन के नाम है, ड्रग रिलेटेड टू so used in the endometrial carcinoma. methyl progesterone can also be used, ठीक है. नेक्स्ट होता है ड्रग फ्लूटामाइड, नेक्स्ट होता है आपका ड्रग फ्लूटामाइड. नेक्स्ट इज फ्लूटामाइड. तो इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजन. ये फ्लूटामाइड क्या है, एंटी एंड्रोजन. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि व्हिच वन इज अ एंटी एंड्रोजन, व्हिच वन इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ओके, व्हिच ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक यूज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन अ कैंसर. प्रोजेस्टिन कौन से कैंसर में यूज करेंगे, प्रोजेस्टिन दे आर यूज्ड इन द एंडोमेट्रियल कैंसर. उनसे एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है. और एस्ट्रोजन जो है मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर में यूज किए जाते हैं, है ना. फ्लूटामाइड, फ्लूटामाइड क्या है, इट इज अ एंटी एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करेगा, इट इज अगेंस्ट द टेस्टोस्टेरोन. सो नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजन, मतलब इसमें स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लोपेंटेनोन फॉरहाइड्रोपिनेफ्रिन रिंग नहीं है. नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजन कंपाउंड विच बाइंड्स टू द एंड्रोजन रिसेप्टर. ये क्या करेगा, एंड्रोजन रिसेप्टर को बाइंड करेगा. रिसेप्टर क्या होते हैं वो अपन देखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में, राइट. एंड ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एंड्रोजन, it blocks the action of androgen. It has a sustainable anti-tumor activity in a patient with a metastatic cancer of prostate. मतलब ये प्रोस्टेट कैंसर में यूज किए जाते हैं ये फ्लूटामाइड वगैरह. सो एडवर्स रिएक्शन ऑफ नॉसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ लिबिडो. नॉसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ लिबिडो. लॉस ऑफ लिबिडो मतलब क्या है, लॉस ऑफ लिबिडो मतलब डिक्रीज्ड डिजायर्ड फॉर द sex. Okay? Loss of libido means decrease the desire for the having sexual activity. Loss of libido. Then sexual impotence, मतलब unable to reproduce. Then hot flushes, sometimes hepatotoxicity. These are the adverse effects. Flutamide. Next होता है glucocorticoids. Glucocorticoids they are nothing but the adrenal hormone. Adrenocorticosteroids. है ना, adrenal हार्मोन से adrenal corticosteroids में glucocorticoids आता है, mineralocorticoids आता है एंड सेक्स स्टेरॉइड्स. तो देखो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, एड्रेनल ग्लैंड आपका, वहां से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं. एड्रेनल ग्लैंड विल रिलीज 3 हार्मोन्स, एड्रेनल ग्लैंड विल रिलीज 3 हार्मोन्स. तो फर्स्ट वन इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड थर्ड वन इज सेक्स हार्मोन. तो सेक्स हार्मोन में 2 टाइप का आता है, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन. किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है. देयर इज अ एड्रेनल ग्लैंड अबव द किडनी व्हिच प्रोड्यूसेस द हार्मोन नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है आपका प्रेगनीसोलोन, ट्राइमसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बाकी आता है सेक्स स्टेरॉइड्स में आता है मेल सेक्स हार्मोन, उसमें आता है टेस्टोस्टेरोन. फीमेल सेक्स हार्मोन में आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स
okay, in the cancer. Glucocorticoids used in the cancer. I hope you are getting my points. आपको समझ में आ रहा है. So glucocorticoids, so इसमें आता है हाइड्रोकोर्टिजोन, okay, and hydrocortisone, example glucocorticoid likes hydrocortisone and other glucocorticoid like prednisolone. They are useful in the condition known as a acute lymphatic leukemia, ये कैंसर में, ब्लड कैंसर में, due to their direct lympholytic activity. Suppression of mitosis and cerebral edema and intracranial tumor metastasis, है ना. मतलब हाइड्रोकोर्टिजोन, प्रेडनिसोलोन, they are useful in the acute lymphatic leukemia as well as suppression of mitosis. They cause suppression of mitosis, cerebral edema and then intracranial tumor metastasis because of their lympholytic activity. मतलब lymphatic gland को ब्रेक करते है ना. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विल डिक्रीज योर इम्यूनिटी. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विल डिक्रीज योर इम्यूनिटी. देखो बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड खाना अच्छा नहीं, स्टेरॉइड खाना अच्छा नहीं. क्यों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विल डिक्रीज योर इम्यूनिटी. तो इट इज आल्सो एंटी इंफ्लेमेटरी. इसको एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी होता है. जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब क्या है? आपको जैसे पेन होता है, बोन पेन, या फिर आपको जख्म होता है, उस टाइम पे क्या है कि ट्रेडिशनल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो होता है NSAIDs, तो ये एक टर्म आता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. NSAIDs उसमें स्टेरॉइड नहीं होता है, लेकिन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है आपका प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, कोर्टिजोन, ट्राइमसोनोलोन, है ना, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन. तो दे आर आल्सो हैविंग एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट. आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस. सो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ हार्मोनल ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्टेड टॉक्सिसिटीज ऑफ हार्मोनल ड्रग. तो देखो फ्लूटामाइड का एडवर्स इफेक्ट क्या है? हार्ट, प्लसेस एंड लिवर डिस्फंक्शन. सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जैसे आपका है ना, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसमें आता है टैमोक्सिफेन, है ना, एनेस्ट्राजोल, है ना, एनेस्ट्राजोल वगैरह. तो मेनोपोजल सिम्टम्स लाइक, है ना, मेनोपोजल सिम्टम मतलब क्या है? इसमें तो आता है अम्नो, है ना, डिस्मेनोरिया एंड अम्नोरिया. मेनोपोजल सिम्टम्स डिस्मेनोरिया, अम्नोरिया एज वेल एज हॉट फ्लशेस. देन फ्लूइड रिटेंशन, है ना, एडिमा हो जाएगा. थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब क्या? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. तो मतलब हार्मोन्स भी सेफ नहीं है. सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स आल्सो कैन कॉज कैंसर. देन प्रोजेस्टिन्स यूज करते हैं अपन. प्रोजेस्टिन्स दे कॉज फ्लूइड रिटेंशन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे कॉज फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी फॉर इन्फेक्शन, मतलब इम्यूनिटी कम करेंगे. ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन एगोनिस्ट. ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन एगोनिस्ट कौन आया? नेपारेलिन, है ना, नेपारेलिन. रेलिन्स जो है, रेलिन्स क्या है? ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग एगोनिस्ट. तो ट्रांजिएंट फ्लेयर अप रिएक्शन. ट्रांजिएंट फ्लेयर अप रिएक्शन. फ्लेयर अप रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? फ्लेयर अप रिएक्शन मतलब क्या? जैसे मान लीजिए इफ यू आर सेंसिटिव फॉर पेनिसिलिन, जैसे आपको पेनिसिलिन दिया तो आपको स्किन रिएक्शन होता है. पेनिसिलिन यूज करेंगे तो किसी किसी को क्या होता है? स्किन रिएक्शन. मतलब यू आर सेंसिटिव फॉर द पेनिसिलिन, है ना, स्किन रिएक्शन हो गया पेनिसिलिन यूज करने के बाद में, है ना. कंसेप्ट समझ रहा हो, है ना. इफ यू यूज पेनिसिलिन यू विल गेट अ स्किन रिएक्शन. नॉट ऑल, समबडी विल गेट अ स्किन रिएक्शन. ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट लिया, उसके लिए क्लियर हो जाएगा तो आप, है ना. बट अभी तो नहीं है, लेकिन व्हेन वी यूज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट जैसे नेपारेलिन, है ना, ये क्या करता है? ये जो आपको सेंसिटिविटी है उसको रिगेन करवाता है, मतलब ये फिर से सेंसिटिविटी आएगा. नोन एज अ फ्लेयर अप रिएक्शन इन हॉट फ्लशेस, इंपोर्टेंस, गायनेकोमेस्टिया, ऑस्टियोपोरोसिस. इन अमाइनोग्लूटाथीमाइड ये करता है, अमाइनोग्लूटाथीमाइड करता है एड्रेनल इनसफिशिएंसी, माइलोसप्रेशन रेस्ट. एरोमेटेज इनहिबिटर जो है ना, वो करता है फटीग, हॉट फ्लशेस, आर्थल्जिया. So these are the specific adverse effect of your hormonal drugs. So we'll see the last will be tomorrow will be the last anti-cancer drug session. Tomorrow we'll see the remaining point that will be the last anti-cancer drug session. ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट में लोग लास्ट में, and that will end your pharmacology anti-cancer. Last tomorrow कल अपन लास्ट एंटी कैंसर ड्रग का सेशन लेंगे फ्रॉम फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू.
और मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए मैं ले लूँगा, दैट विल बी टेकन इन 1 आवर, दैट्स इट। तो देखो आपका सेल एंटी कैंसर ड्रग फिनिश हो जाएगा, उसके ऊपर आपको मैं एक टेस्ट डाल दूंगा एप्लीकेशन में, यू हैव टू अटेंड द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट डाल दूंगा मैं, क्वेश्चन निकाल के इसमें से क्वेश्चन बना के डाल दूंगा, 2-3 दिन लग जाएंगे उसको। उसके बाद में अपन चलो करें जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में इमीडिएटली करूँगा। तो टुमारो विल बी द लास्ट फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, एंड आफ्टर दैट one session of medicinal chemistry, and after that we will start the general pharmacology. Okay, so I hope you have understood. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसमें डाउट अगर आता है तो पूछो, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन, है ना। सो क्योंकि ये अभी भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन कैसा है आपको भी हेवी हो जाएगा, दैट्स व्हाई, राइट। ऋतुजा, सरोज समजलं का सगळ्यांना? समजलं सगळ्यांना? ऋतुजा, सरोज वगैरे बाकी जेवढे आहेत तेवढे. So remaining points will take tomorrow. समजलं सगळ्यांना? ऋतुजा, सगळ्यांना समजलं का? समजलं का सगळ्यांना? Yes or no? Everybody understood? फटाफट सांगा मला, नाहीतर मग है ना. Everybody understood? See you tomorrow.